हाँ जी बेटा, अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एज वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर रेस्पिरेशन, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ respiration. So depending upon the availability of the oxygen or the means whether the oxygen is involved or not involved, two type of respiration is there. One is aerobic and one is anaerobic. आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच द फूड इज completely oxidized with the help of oxygen. Means what happen here? C6H12O6 plus 6O2. In the presence of enzyme, it completely break down to CO2, water and 686 kilocalorie energy. So here you can see the food. This is the carbohydrate which get completely break down to CO2, water and this much amount of energy is released. What is anaerobic respiration? Means in the absence of oxygen, where no oxygen is used, organic food is incompletely broken down. यानी कि अब यहाँ क्या होगा? Here I am writing here C6H12O6. Now no oxygen is involved, then what will happen? It form C2H5OH plus 59 kilocalorie energy is released. Otherwise C6H12O6 in the absence of oxygen it form lactic acid and release 36 kilocalorie of energy. Here you can see in aerobic respiration oxygen is directly used and the carbohydrate they get completely oxidized. आप देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टोटली ब्रेक डाउन हो गए CO2 और वाटर में, पर यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है. it is not completely oxidized, rather it form, this is the ethyl alcohol and this is the lactic acid. And here you can see the difference in energy. Here 686 kilocalorie. Why? Because food is completely oxidized. And here you can see 59 kilocalorie and here you can see 36 kilocalorie energy is released. तो anaerobic respiration क्या है? That is a means energy is released, energy is liberated during the breaking of the bond and common product are ethyl alcohol and lactic acid. अब सोचने की बात है कि ये respiration कहाँ होता है? It commonly take place in some microorganism like in the बैक्टीरिया और ईस्ट. आपने जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है ईस्ट में. तो कैसे होती है? इसी से एनएरोबिक ब्रेकडाउन से, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन से. ठीक है, तो कुछ टेम्परेरी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में ये टेम्परेरी कई बार हो जाता है. anaerobic respiration it cannot continue for the long time because it releases small amount of energy. More substrate is decomposed, little is left for growth and repair. Some of the end product of they are the intermediate of anaerobic respiration and it create a problem. Means these are the intermediates, they can create a problem. So in higher organism it cannot continue for the longer time. However in the microorganism it occurs. Lactic acid का आप पढ़ते हो, जैसे कि अगर sometimes we means during the sternus exercise what happen that in our muscles in the absence of the oxygen, means when the oxygen supply is not that much, in that case in the muscles what happens, the carbohydrate they get anaerobically break down into lactic acid. That is called as muscle fatigue. सुना होगा आपने, जिससे क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मसल फैटिग. और ये कैसे सही होता है? जस्ट बाय टेकिंग रेस्ट द लैक्टिक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड वाटर व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई विल बी नॉर्मल. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मसल फैटिग. ये बात आप आगे जाके डिटेल में फिर से पढ़ोगे. तो समझ आया आपको क्या है एरोबिक और क्या है एनारोबिक. फिर एक पॉइंट आता है व्हाट इज
कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या है, वो लाइट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ द लाइट इंटेंसिटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the atmosphere where the rate of photosynthesis is equal to rate of respiration, no gaseous exchange taking place, that is called as a compensation point। समझ आया? यानी कि वो लाइट इंटेंसिटी या वो CO2 की कंसंट्रेशन जहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है that is equal to the respiration। Is it clear? And there is no gaseous exchange occur here, this is called as a compensation point। फिर नेक्स्ट अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज RQ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट कम्स इन 2 चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस, सो बी वेरी केयरफुल। क्या है, व्हाट इज RQ? RQ मीन्स द रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved divided by volume of oxygen consumed। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन क्या है, इन्वॉल्व हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है, तो इन दोनों का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड RQ। अब अगर हमने कहा RQ की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज था, आप देख के बताओ, मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, CO2 इवॉल्व कितना है 1, ऑक्सीजन कंज्यूम, सो हियर इट इज 6 CO2, देन so it is the equation should be correctly balanced, it is 6 CO2 and 6 H2O। now you can see volume of CO2 evolved कितना लिखा है 6 and volume of oxygen evolved 6, तो 6 CO2 by 6 O2। आप सोच के बताओ तो RQ कितना आ गया 1। समझ आया? तो अगर हमें RQ की वैल्यू पता है, हम बता सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज हुआ है फॉर द रेस्पिरेशन, या अगर हमें सबस्ट्रेट पता है तो हम रेस्पिरेट RQ की वैल्यू बता सकते हैं, दोनों बातें हम बता सकते हैं। दोबारा से देखो, RQ का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी कोशेंट, यानी कि CO2 कितना इवॉल्व हुआ है डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, ओके, एंड इट कम्स आउट टू बी 1 इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। When we talk about the acid, its value is more than 1, and when we talk about the protein and fat, it is less than 1। तो ये पॉइंट आपने लिखने हैं, RQ is equal to 1 in carbohydrate, less than 1 in fat and protein, and in succulent RQ is 0। What is the RQ in case of the succulent? It is 0, and in case of acid it is more than unity। अभी मैं आपको इन सब की वैल्यूज निकाल के बताती हूँ, पर अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि what is RQ? RQ is the respiratory quotient। Is it clear? हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि RQ की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मेक इट क्लियर, व्हाट इज RQ? RQ is equal to respiratory quotient and it is equal to volume of CO2 evolved by oxygen absorbed। Is it clear? अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अब बताओ यहाँ पे RQ कैसे निकालोगे? लेट्स चेक। CO2 evolved, CO2 कितना है 6, ऑक्सीजन कंज्यूम 6, तो RQ कितना आ गया 1। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है 1। क्लियर? फैट में देखो, यहाँ देखो CO2 क्या था इवॉल्व, अब इसमें क्या है दिस इज CO2 इवॉल्व, तो RQ निकाल लो, इसका क्या आएगा 57 है, ऑक्सीजन कितना है 80, तो 57 by 80 0.7 के करीब इसका आएगा, तो RQ इज लेस देन 1 इन केस ऑफ फैट्स एज वेल एज इन प्रोटीन। फिर आता है सकुलेंट्स। सकुलेंट में देखो RQ क्या था CO2 इवॉल्व, अब ध्यान से देखो क्या यहाँ कहीं CO2 है, नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन बाय 3 है ऑक्सीजन, तो RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर? तो RQ क्या आ गया इसका 0। ठीक है, अब बात आती है एसिड्स की। एसिड में देखो यहाँ निकाल लो RQ, ये कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है
7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.14 के करीब। तो आपको समझ आया? तो RQ क्या है? मोर देन 1 है इन केस ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं। RQ की वैल्यू 1 कब है, RQ 0 कब है, RQ लेस देन 1 एंड RQ लेस देन 1 एंड RQ मोर देन 1। ये 4 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और मान के चलिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि RQ की वैल्यू 0 कब है। आपको बताया मैंने कि 0 होती है सकुलेंट के केस में जहां पे CO2 रिलीज ही नहीं हुई, और 1 किसके केस में थी? कार्बोहाइड्रेट के केस में। मोर देन 1 थी एसिड्स के केस में, लेस देन 1 थी फैट्स और प्रोटीन के केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द RQ। तो क्या फायदा होता है अगर आपको RQ की नॉलेज हो? सबसे पहले नॉलेज ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अगर आपको RQ पता लग गया, फर्ज करो आपको मैंने कहा कि बेटा RQ अगर 0.2, 0.7 या 0.6 है, तो आप सबस्ट्रेट बताओ। आप फटाफट बता दोगे कि मैम अगर लेस देन 1 वैल्यू है तो डेफिनेटली RQ अगर लेस देन 1 है तो वो क्या है? या तो वो फैट होगा सबस्ट्रेट, या क्या होगा? प्रोटीन होगा। ठीक है, समझ आई बात? तो हमें यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें पता चल जाए कि RQ की वैल्यू क्या है, हम सबस्ट्रेट बता सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है, इट हेल्प इन नोइंग द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मीन्स हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन इज परफॉर्मिंग। किस तरीके की रेस्पिरेशन हो रही है, ये हमें इससे भी पता चलता है कि RQ की वैल्यूज क्या है। क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है, आपको 2 तरह की रेस्पिरेशन बताई। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या था? जिसके अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स they were used as a respiratory substrate। और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या था? जिसमें प्रोटीन एज ए सबस्ट्रेट यूज होते हैं। सो दिस इज द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द RQ? RQ मीन्स सिंपली रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved and volume of oxygen consumed। Clear? So this is all about this topic.